Hello everyone, how is it going? Hope you all are doing well. Welcome you all on this channel where you will be provided with complete guidance on GATE and engineering service examinations. My name is Shiraz Ahmed. Here is a brief profile about me. So my dear friends, let us start our first course on this channel, that is on fluid mechanics. In this course, my dear friends, we will cover the entire syllabus, and these are the topics that will be covered in this course. We will be having a series of lectures covering the entire topics as mentioned on this slide. So my dear friends, let us see what are the course objectives. So firstly, हम लोग वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो पिछले स्लाइड में मेंशन किया गया था. सेकेंडली, वी विल लर्न वेरियस कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स का बेसिस क्या है, उसका ओरिजिन क्या है हम समझेंगे. एंड ऑल्सो वी विल सी हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, हम ये देखेंगे कि विस्कोसिटी और डेंसिटी एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है. हाउ डेंसिटी is interlinked with the viscosity, हम ये समझेंगे. As if we learn in this fashion, it will help us to improve our retaining capability, and it will also help us to memorize the formula in easier way. Apart from this, my dear friends, we will also have question practice sessions where we'll be solving some quality questions and previous year questions as well. I have mentioned two books here for reference. You can follow any one of them. So my dear friends, without wasting any further time, let us start our third lecture. In this lecture, we will cover wetting and non-wetting phenomenon on fluid. So let us try to understand what is wetting and what is non-wetting fluid. So हमने कंसीडर किया एक फ्लूइड on a glass plate, and if this fluid is able to cover a larger surface area, then we call this fluid as a wetting fluid. और अगर ये small area cover करता है, then we'll call this as a non-wetting fluid. In next slides, we'll try to understand why this phenomenon occurs, what is the origin behind this phenomenon. After this, my friends, we will cover capillarity, its concept, and we'll solve some problems on this concept. Okay, so before starting wetting and not wetting fluid, let us solve one problem that is based upon my previous lectures. So the problem is, what is the pressure inside a liquid jet. So अगर एक liquid jet है, let us consider a liquid jet of diameter, ये liquid jet है, इसका diameter कितना है, small d. तो what is the pressure inside this liquid jet, where the outside pressure is P naught, surface tension is sigma. So इसको हम solve करने के लिए what I do, मैंने इस सिलेंडर को हाफ में कट कर लिया. सो इफ आई कट दिस थिंग इन हाफ, इट विल लुक इन दिस वे. ओके माय डियर फ्रेंड्स, और इसका इनसाइड का प्रेशर क्या होगा, P, और आउटसाइड का प्रेशर क्या है, P नॉट. ये लिक्विड फ्लूइड होगा इसके अंदर, उसका प्रेशर क्या है, P, आउटसाइड का प्रेशर P नॉट. ओके, और इसके बाउंड्री पे क्या लगेगा, सरफेस टेंशन. दैट वी ऑलरेडी नो कि बाउंड्री पे क्या लगता है, सरफेस टेंशन. और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग दी सरफेस, होल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ओके माय डियर, यहाँ पे भी, ये वाले पे भी, इधर भी. ओके, एंड लेट अस कंसीडर दिस फोर्स इज F. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस फोर्स, तो वो कैसे आएगा, फोर्स दैट इज सिग्मा इंटू लेंथ, ओवरऑल लेंथ. ओवरऑल लेंथ क्या है इसका, पेरीमीटर ही है ना.
ओवरऑल लेंथ क्या है इसका, पेरीमीटर है, बेसिकली नथिंग बट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, 2L प्लस 2D, ये हो गया हमारा F। और ये F क्या है, अपवर्ड है तो प्लस सिग्मा। लेट अस ड्रॉ एक्सिस, y एंड x एक्सिस। सो ये प्लस हो जाएगा। नाउ आई ट्राई टू फाइंड आउट द फोर्स ड्यू टू प्रेशर P, वो किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, राइट। सो माइनस P इंटू नॉर्मल एरिया, प्रेशर P किस पे लग रहा होगा, इस एरिया पे लग रहा होगा, राइट। प्रेशर P जो लग रहा होगा वो किस एरिया पे लग रहा होगा, इस एरिया पे लग रहा होगा। सो P इंटू एरिया दैट इज L इंटू D, P नॉट फोर्स ड्यू टू P नॉट, सो वो अपवर्ड लगेगा, दैट इज P नॉट इंटू L इंटू D। अब हम क्या करेंगे, समेशन Fy 0, जब समेशन Fy 0 किए तो F क्या है, सिग्मा इंटू 2L प्लस 2D, Fp क्या है, माइनस P इंटू LD, P नॉट Fp नॉट P नॉट इंटू LD इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से P को उधर लेके गया और LD से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा, P नॉट प्लस सिग्मा इंटू 2L प्लस 2D अपॉन L इंटू D। So this is the pressure inside a liquid jet. You can memorize it or you can solve it in 2 lines. Very simple derivation. Okay. So now let us move to our next topic, that is wetting and non-wetting phenomena. So in previous slide we came to know what is wetting fluid and what is non-wetting fluid. जो सरफेस को ज्यादा वेट कर दे, जो सरफेस पे ज्यादा फैल जाए उसको बोलते हैं वेटिंग फ्लूइड, जो सरफेस पे कम फैले, जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए उसको बोलते हैं नॉन वेटिंग फ्लूइड। Okay, so before this let us try to understand two concepts. One is adhesive force and another is cohesive force. So adhesive force क्या होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होगा उसको बोलते हैं adhesive force. फॉर एग्जाम्पल ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स आएगा उसको क्या बोलेंगे, adhesive force। और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स आएगा उसको बोलेंगे कोहेसिव, या वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स आएगा उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। तो सिमिलर मॉलिक्यूल, राइट, सो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल मरकरी और मरकरी के बीच की फोर्स को भी क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ये हो गया अपना एक कॉन्सेप्ट। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि वेटिंग फ्लूइड के बारे में। तो हम एग्जांपल लेते हैं वाटर और ग्लास का, ठीक है। द फर्स्ट एग्जांपल दैट विल टेक वाटर एंड ग्लास। एग्जांपल 1, तो अगर हमारे पास अगर एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, इस पे हमने एक वाटर ड्रॉपलेट रख दिया। सो बाउंड्री पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, और यहाँ पे क्या है, ग्लास मॉलिक्यूल होंगे। सो अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करें, इसका मैकेनिक्स देखें, तो इस मॉलिक्यूल पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इधर से कौन कौन से फोर्स लगेंगे, कोहेसिव फोर्स, और इधर क्या लगेगा, एडहेसिव फोर्स। और हमें पता है बाय द एनालिसिस कि इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास एडहेसिव फोर्स is more than the cohesive force. Okay my dear friends, so this is by practical analysis and all these things. So adhesive force is more than the cohesive force. So क्या करेगा, ये वाला बाउंड्री पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ बाउंड्री पे ये पुल होगा इधर वाला भी जो मॉलिक्यूल होगा ये इधर पुल होगा, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो जब चीजें पुल होंगी तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल फैल जाएगा, ये स्प्रेड आउट हो जाएगा पूरे सरफेस पे, ज्यादा स्प्रेड करेगा, तो इसको बोल देंगे क्या, वेटिंग फ्लूइड। सो वेटिंग फ्लूइड क्या, वाटर वेटिंग फ्लूइड है किस पर, ग्लास पे। कोई और सरफेस होगा तो वाटर उस पर वेटिंग फ्लूइड नहीं हो सकता है कभी कभी। ओके, इट इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम। सो अगर एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स,
फॉर एनी केस, फॉर एग्जाम्पल वाटर ग्लास के केस में क्या होता है, एडहेसिव इज मोर देन कोहेसिव, तो वाटर ऑन ग्लास इज वेटिंग फ्लूइड। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉन्टैक्ट एंगल। सो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, सो द इनसाइड एंगल जो कि क्या करता है, इसको याद कैसे रखते हैं कि फ्लूइड को कट होना, इधर करेंगे तो फ्लूइड को कट नहीं हो रहा है ना, देखो फ्लूइड एक पार्ट भी फ्लूइड का कट नहीं हो रहा है, तो इसको याद कैसे करना, वो है कॉन्टैक्ट एंगल, वो एंगल होता है जिसको अगर हम ऐसे करें तो फ्लूइड को कट करे, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, तो इसको डिनोट करें थीटा से, तो थीटा इज नथिंग बट कॉन्टैक्ट एंगल। सो जब फ्लूइड फैल जाएगा तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या हो जाएगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री। सो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इसको आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी यूज लेटर ऑन वेरी फ्रीक्वेंटली। सो वेटिंग फ्लूइड क्या होता है, व्हेन एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स, तो फ्लूइड फैल जाएगा, जब फ्लूइड फैल जाएगा तो उसी को क्या बोल देंगे, वेटिंग फ्लूइड, और उस केस में कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, एज इट इज एविडेंट इन दिस फिगर। सो नेक्स्ट हम समझते हैं नॉन वेटिंग फ्लूइड। तो हमने क्या किया, ग्लास प्लेट लिया, इस पर हमने क्या डाला, मरकरी। तो मरकरी के केस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एडहेसिव फोर्स से, मरकरी और ग्लास के केस में। ये ग्लास प्लेट है, एग्जाम्पल 2 ग्लास प्लस मरकरी। सो ये ग्लास प्लेट, ये मरकरी है, तो यहाँ पे जो बाउंड्री पे मरकरी का मॉलिक्यूल होगा, ये किससे पुल होगा, कोहेसिव फोर्स से पुल होगा, इधर एडहेसिव फोर्स से पुल होगा। तो जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा एडहेसिव फोर्स है तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो फैल नहीं पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जब फैल नहीं पाएगा तो क्या होगा, वो नॉन वेटिंग। सो मरकरी ग्लास पे क्या है, एक नॉन वेटिंग फ्लूइड है, क्यों, क्योंकि कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये थीटा नहीं है जो फ्लूइड को कट करे, ये फ्लूइड को कट कर रहा है, तो ये थीटा है, तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो यहाँ पे भी हमने तीन चीज पढ़ लिया ना, थीटा 90 डिग्री, देन इट इज नॉन वेटिंग फ्लूइड, और आई कैन से if cohesive force is more than adhesive force, then it is non-wetting fluid. Okay, my dear friends, so I hope it is clear to you all, clear, right? So we'll move to our next concept, that is capillarity. So let us try to understand why capillarity phenomena comes, or when it comes. So when we put a small diameter tube into a liquid, so एक लिक्विड ले लिए, जो सेंटेंस कह रहा हूँ वही कर रहे हैं, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ठीक है माय डियर। ये हमने ले लिया लिक्विड, इसमें कर दी स्मॉल डायमीटर, वेरी स्मॉल डायमीटर पाइप, इंसर्ट कर दिया, तो ये क्या होता है, जब पाइप हमने इंसर्ट किया तो अगर ये वाटर है और ये ग्लास पाइप, सो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि ये फ्लूइड जो है ये इसी लेयर पे नहीं रह जाता, ये लेयर यहीं पे ऐसे नॉर्मल ऐसे पैरेलल नहीं रहता, ये चला जाता है ऊपर, ऐसे कर्व में थोड़ा ऐसे ऊपर चला जाता है, इसको बोलते हैं हम राइज, कैपिलरी राइज। अगर यही हम लिए वाटर और ग्लास और मरकरी, ये है हमारा मरकरी, इसमें हमने पुट कर दिया ग्लास का ट्यूब, तो इसी केस में क्या होता है, मरकरी विल गो डाउन, ऐसे बन जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी फॉल। सो ये दो फिनोमिना हम समझेंगे, और ये कैसे राइज करता है, कैसे रीच करता है, ये फिनोमिना क्यों होता है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कैपिलरी राइज कि होता क्यों है। सो हमने फिर से लिया एक बकेट, उसमें डाला एक पाइप दैट इज ऑफ ग्लास, और यहाँ पे क्या है, वाटर है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो लेट्स सपोज ये इधर ही रहा ऐसे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा जूम पिक्चर यहाँ पे बनाते हैं, जूम पिक्चर, ये है पाइप,
ठीक है, ये रहा वाटर लेवल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो जब ये वाटर मॉलिक्यूल है, या ये पुल होगा यहाँ पे ग्लास मॉलिक्यूल से बाय एडहेसिव फोर्स। सेम वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इधर डाउनवर्ड्स पुल होगा किससे? कोहेसिव फोर्स से। ये भी कोहेसिव फोर्स, और इधर जाएगा एडहेसिव फोर्स टॉप में। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एडहेसिव फोर्स फॉर ग्लास एंड वाटर इज मोर देन द कोहेसिव फोर्सेस। ओके माय डियर, सो ये क्या होगा? ऊपर पुल होगा, और ये कैसे बन जाएगा? इस टाइप से। ओके माय डियर, और ये अपना है फ्री सरफेस। ये क्या था? फ्री सरफेस। यहाँ पे प्रेशर क्या है? पी नॉट। तो यहाँ पे भी क्या प्रेशर होगा? पी नॉट। ओके माय डियर, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? पी। तो अब जो ये है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल, ये कुछ फोर्स से ही पुल हो रहे होंगे ना। सो लेट्स सपोज दैट फोर्स इज एफ एंड इट विल बी पुल्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके माय डियर, और कॉन्टैक्ट एंगल ये है थीटा, दिस इज द कॉन्टैक्ट एंगल। सो अब हम क्या करते हैं? एक्सिस ड्रॉ करते हैं। फोर्स बैलेंस करना है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स और वाई। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम करते हैं इस लेयर पे फोर्स, क्या करेंगे? इस लेयर पे हम करते हैं फोर्स बैलेंस। ओके माय डियर, और उसके लिए हम फोर्स बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एफ का कंपोनेंट लिया तो क्या होगा? एफ कॉस थीटा आ गया, एफ कॉस थीटा। ओके, अपवर्ड। और अगर हम टॉप से देखें तो ये कैसे दिखेगा? इस टाइप से दिखेगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये डायमीटर पाइप ऑफ स्मॉल डायमीटर डी, और सरफेस टेंशन इज सिग्मा। जब ऊपर से देखेंगे तो ये सर्कुलर दिखेगा, और जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स होगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस पेरीमीटर पे, राइट, और ये होगा एरिया। ये पेरीमीटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो व्हाट इज एफ? सिग्मा इंटू पेरीमीटर, दैट इज सिग्मा इंटू पेरीमीटर की वैल्यू क्या है इसकी? पाई इंटू डी। ये हमारा आ गया एफ। और फोर्स ड्यू टू पी नॉट निकालते हैं, वो क्या? डाउनवर्ड होगा, राइट। सो माइनस पी नॉट, और एरिया क्या है? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अपवर्ड फोर्स एफ पी प्लस, क्योंकि अपवर्ड लग रहा है, पी इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब हम बैलेंस करते हैं फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, दैट इज समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो जो समेशन एफ वाई 0 करेंगे तो ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? एफ कॉस थीटा प्लस में, ठीक है। पी नॉट क्या है? माइनस में, माइनस पी नॉट इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पी इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यही तीन फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज 0। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पुट करते हैं एफ की वैल्यू यहाँ से, और क्या करते हैं? बाकी ये दोनों टर्म को लेके जाते हैं राइट साइड में। सो पी इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू पी नॉट इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एफ कॉस थीटा। तो अब P हमारा क्या निकल के आएगा? P नॉट माइनस एफ की वैल्यू क्या है? सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा इंटू 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से P क्या निकल के आएगा? P इक्वल्स टू पी नॉट माइनस 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ये हो गया इक्वेशन 1। ये आया कहाँ से? फोर्स बैलेंस से। सो हम क्या चीज़ करेंगे? कभी भी ये चीज़ सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फोर्स बैलेंस।
दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप, स्टेप्स। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा 2 स्टेप होता है। एक जो हमने बता दिया ऑलरेडी, फोर्स बैलेंस, ठीक है। दूसरा स्टेप हम अब बताएंगे यहाँ पे आपको। अब जब वो ऊपर खींच रहा था तो वो जो, अब दूसरा स्टेप क्या है कि नाउ आई कैन से दिस फ्लूइड विल बिकम इन दिस फैशन, राइट, ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर क्या है, P है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, P0 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन से P इज लेस देन P0, राइट। सो एज पर पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा है लेक्चर 1 में, पास्कल्स लॉ कि परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी सेम होना चाहिए। तो यहां पे अगर P0 है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, P0, बल्कि जबकि इस केस में क्या है, P है विच इज लेस देन P0। सो अब यहाँ पे फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड ट्राई अंडरस्टैंड करेगा कि मेरा तो प्रेशर कम है ना, अब इसको हम प्रेशर बढ़ाना है हमें। तो अब यहाँ पे प्रेशर कैसे बढ़ा सकता है, फ्लूइड सोचेगा अपने दिमाग से, क्या नीचे जाके बढ़ाएगा, नहीं नीचे जाके नहीं बढ़ सकता है। जब ऊपर जाएगा, मान लो ये ऊपर गया, तो ऊपर जाएगा तो कुछ एडिशनल फ्लूइड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे P0 है और इधर यहाँ पे क्या था, P, जो हमने डिराइव किया था। जब ऊपर जाएगा तो कुछ एडिशनल फ्लूइड आ जाएगा। सो ये एडिशनल फ्लूइड एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट करेगा डेल्टा P, क्योंकि फ्लूइड के हाइट की वजह से कॉलम में, हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा है कि फ्लूइड के हाइट की वजह से कॉलम में क्या होता है, ड्यू टू इट्स वेट एडिशनल प्रेशर विल कम आउट। सो ये एडिशनल जो प्रेशर आएगा वो यहाँ के प्रेशर को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, दैट विल बी P0। समझ में आया माय फ्रेंड्स। सो अगर ये ऊपर है, ये हमारा क्या था, पाइप था, यहाँ पे प्रेशर क्या है, P0, ये फ्री सरफेस, यहाँ पे प्रेशर P0, यहाँ पे क्या था, प्रेशर P, और ये कितना हाइट गया, h हाइट मान लो ऊपर गया, ठीक है। इस केस में मान लो वही सेम ही पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान लो h हाइट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये एडिशनल फ्लूइड वेट की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, P0। अब हम 1 और 2 के बीच में फ्लूइड कॉलम वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, पास्कल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा था, एक्सप्रेशन फॉर कॉलम, वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो 2 ही स्टेप है, एक फोर्स बैलेंस का एंड सेकेंड इज पास्कल्स लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कॉलम्स, जो कि 1 और 2 के बीच में हम लगाएंगे। तो हमें प्रेशर कहाँ पता करना, 2 पे, दैट इज P0। सो P0 इक्वल्स टू P। सो हम P से P0 जाने के लिए क्या करेंगे, डाउन जाएंगे, तो प्लस कितना डाउन गए, H, तो रो जी H, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये हो गया पास्कल्स लॉ, सेकेंड स्टेप। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से मिला था, फोर्स बैलेंस से। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से मिला था, फोर्स बैलेंस, समेशन Fy इक्वल्स टू 0 से। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से मिला, पास्कल्स लॉ से। और दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, P0 की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था, P इक्वल्स टू P0 माइनस 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डी। अब इसमें हम P0 की वैल्यू रख दिए, सो P इक्वल्स टू P प्लस रो जी एच माइनस 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डी। P से P कैंसिल हो गया और H क्या आ गया, दैट इज कैपिलरी राइज 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये होगा कैपिलरी राइज का फॉर्मूला। किस केस में, वाटर और ग्लास के केस में। नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाई इन वाटर एंड ग्लास देयर इज अ कैपिलरी राइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इट कैन कम एनी टाइम इन एग्जामिनेशंस। सो क्वेश्चन इज व्हाई इन केस ऑफ वाटर ग्लास देयर इज कैपिलरी राइज। मैंने अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले।
आप लोग आंसर लिख लीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर. द रीजन बिहाइंड कैपिलरी राइज फॉर वाटर एंड ग्लास इज adhesive force is more than cohesive force. So this is the main reason behind water and glass capillary rise. क्योंकि adhesive force जब cohesive force से ज्यादा होगा तो water का शेप ऐसे बन जाएगा. क्या कैसे? इस टाइप से. जब इस टाइप से बनेगा तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा. जब यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा तो बढ़ाने के लिए ऊपर चला जाएगा फ्लूइड. तो ऊपर चला जाएगा तो ड्यू टू वेट यहाँ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एंड और कितना होना चाहिए यहाँ का प्रेशर, बढ़ करके पी उतना ही बढ़ेगा कि ये पी नॉट हो जाए. क्यों? क्योंकि पास्कल्स लॉ बोलता है हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू जी प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बोलता है पास्कल्स लॉ. इसीलिए हॉरिजॉन्टल यहाँ पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, पी नॉट. ओके माय डियर फ्रेंड्स. तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. एंड सो मेनी क्वेश्चंस दैट विल कम इन दिस with respect to this formula. So now let us take another example, another problem. Okay, another problem number 2. In this case water है और glass tube है of square type. उसमें कैपिलरी राइज क्या होगा वो कैलकुलेट करना. व्हाट विल बी द कैपिलरी राइज इन केस ऑफ ग्लास पाइप विच इज हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ साइड ए. सो ये ऐसे मैंने इंसर्ट कर दिया इसमें. सो ये क्या होएगा, ऊपर जाएगा, कैपिलरी राइज होगा. वाटर ग्लास में क्या होता है, हमेशा कैपिलरी राइज होता है. ये वाटर है और ये ग्लास है, ग्लास ट्यूब है, तो क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा. और ये पूछ रहा है ये कैपिलरी राइज जो है एच की वैल्यू क्या होगी. तो सिमिलर है, हमने क्या दो कॉन्सेप्ट बताया था, 2 स्टेप बताए थे, फोर्स बैलेंस का, दूसरा क्या पास्कल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ये 2 चीज से हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन. ओके माय डियर फ्रेंड्स. सो सबसे पहले फोर्स बैलेंस करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सिंपली हम ड्रॉ कर लिए, देखो ऐसे ड्रॉ कर लिए. ये F जाएगा, इधर F, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है. ओके, यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, यहाँ पे प्रेशर P है. ठीक है. और फोर्स बैलेंस के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, x ड्रॉ करना. ओके, x और y. हम क्या करेंगे, समेशन Fy इक्वल्स टू 0. ओके माय डियर फ्रेंड्स. सो नाउ FSY क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन y डायरेक्शन, दैट इज F cos थीटा. ये कंपोनेंट लेंगे, इस F को इधर अगर कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, F cos थीटा. और F की वैल्यू अब क्या होगी, माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस सी व्हाट इज F. F इज नथिंग बट सिग्मा इनटू पेरीमीटर, राइट. व्हाट इज पेरीमीटर हियर, सिग्मा इनटू 4 इनटू a. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. अब नेक्स्ट फोर्स निकालेंगे F P नॉट, और ये F cos थीटा क्या होगा, ऊपर होगा तो प्लस, F P नॉट क्या है, नीचे है तो माइनस, माइनस P नॉट इंटू नॉर्मल एरिया. नॉर्मल एरिया कितना है इसका, इंटू एरिया, लेट अस राइट एरिया. सो माइनस P नॉट इंटू एरिया, हाउ मच, इट इज a स्क्वायर. एंड F P क्या है, अपवर्ड, प्लस P into area, that is plus P into a square. अब हम करते हैं समेशन Fy 0. ठीक है. तो समेशन Fy 0 सबसे पहले सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा, सिग्मा इंटू 4a इंटू कॉस थीटा, राइट. ये है F का वैल्यू हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, यहाँ पे F की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस किया तो ये मिल गया, ये माइनस P नॉट इंटू ए स्क्वायर प्लस P इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके माय फ्रेंड्स. सो यहाँ से अगर हम P निकालना चाहें तो P की वैल्यू क्या होगी, P नॉट माइनस 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन a. ये अपने पास इक्वेशन 1 आ गई. किससे इक्वेशन आ गई, फोर्स बैलेंस से.
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर P है राइट, और ये मान लो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्री सरफेस है राइट, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए, P नॉट। सो 1 और 2 के बीच में पास्कल्स लॉ लगा दो, और ये हाइट कितना था, h। तो 1 और 2 के बीच में पास्कल्स लॉ अगर लगाए तो क्या आएगा, P नॉट हमें निकालना है, तो P नॉट इक्वल्स टू P। अब P से P नॉट पे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं राइट, सो P प्लस रो जी इंटू एच। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, दो इक्वेशन मिल गए। इन दो इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो कैपिलरी राइज की वैल्यू क्या आ गई, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू ए। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा फाइनली। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज द कैपिलरी राइज फॉर वाटर ग्लास in case of square pipe, right? So this is another formula that you have to memorize. Now my dear friends, for this formula I am going to tell you a very novel concept, which if you remember only one formula, you can solve all the problems related to the capillary rise or capillary fall. So only single formula you can solve any problem with respect to capillary rise and fall. So let us see what is that formula is. So now I am going to tell you that formula, that is H equals to sigma cos theta into perimeter upon rho g into area. So this is that novel formula which will be used for all cases. Okay my dear friends, so now let us try to understand various terms. Sigma is the surface tension as we already know, cos theta, theta is the contact angle, rho g is the density of the fluid, and g is the acceleration due to gravity. Now we will try to understand what is area and perimeter. So now I'll consider the square problem, right, that we have just solved now. Okay, so ये था square in previous problem, right, square cross section था ना पाइप का, so ये रहा स्क्वायर। अब सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ पे लगेगा, पूरे पेरीमीटर पे राइट, तो जहाँ जहाँ सरफेस टेंशन लगेगा इस वो वाला पूरा अगर हम ऐड कर लेंगे तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। जहां जहां पे भी लगेगा वो पूरा लेंथ ऐड कर लो, पूरा लेंथ ऐड कर लो तो पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, स्क्वायर के केस में 4 इंटू ए, अगर साइड ए है, ठीक है। और जैसे ये केस था पाइप का, तो हम क्या करेंगे, टॉप से देखेंगे। कहां से देखेंगे, टॉप से। जब टॉप से देखेंगे तो क्या एरिया हमें मिलेगा, हमें कौन सा एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया दिखेगा राइट, अगर टॉप से देखे तो। जब ये वाला एरिया दिखेगा तो वही एरिया होगा जो टॉप से दिखता है, कि ये एरिया में फ्लूइड होगा सारे, ठीक है, इस वाले एरिया में ही फ्लूइड होगा राइट। जितने एरिया में फ्लूइड होगा वो पूरा एरिया हमें लेना, सो दैट इज ए स्क्वायर। सो अब एच क्या आ गया, सिग्मा कॉस थीटा इंटू 4a अपॉन रो जी इंटू ए स्क्वायर। सो क्या होगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन। Okay my dear friends, so just one line, now we are able to solve using this formula in one line, in single line. Earlier we have to take these two steps, right, फोर्स बैलेंस पहले करना, फिर पास्कल्स लॉ लगाना, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करके फाइनल आंसर आता हमारा h इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी ए। बट नाउ इफ आई रिमेंबर दिस ओनली दिस फॉर्मूला, इट इज शॉर्ट, मुझे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। इन वन लाइन आई एम एबल टू कम टू द फाइनल आंसर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इस
सर्कुलर पाइप का ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला राइट, सर्कुलर पाइप के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सर्कुलर पाइप को अगर हम टॉप से देखें तो कैसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है, और सरफेस टेंशन अब फ्लूइड ऐसे भरा रहेगा राइट, और सरफेस टेंशन कहाँ लगेगा, राउंड पे। तो पेरीमीटर, ये क्या केस 1। अब नाउ हम सर्कुलर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर क्या हो गया, पाई डी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और एरिया क्या हो गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। कौन सा एरिया, टॉप से देख रहे हैं तो ये वाला एरिया ना, जितने में फ्लूइड है वो वाला एरिया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सो अब एच की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा कॉस थीटा इंटू पेरीमीटर इज पाई डी, एरिया इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सो हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। सो ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला राइट दैट वी हैव डिराइव्ड अर्लियर बाय लॉन्ग मेथड। और ये नॉल फॉर्मूला यूज किया तो हमें सिर्फ सिंगल लाइन में आंसर मिलता जा रहा है। सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। आप लोग ये प्रॉब्लम डिटेल्ड मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है, जो हमने पहले प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस यू सॉल्व इट विथ डिटेल्ड मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड by using these 2 steps, that is force balance और पास्कल्स लॉ यूज करके, ठीक है माय फ्रेंड्स। बट मैं यहां पे कैसे सॉल्व करूंगा, शॉर्टकट तरीके से, ठीक है, स्मॉल वाला फॉर्मूला यूज करके। तो प्रॉब्लम पहले समझ लीजिए क्या है कि वाटर है एक बकेट में, इसमें हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का पाइप इंसर्ट किया, ठीक है, जिसका साइड कैसे है, ए है और बी है, ठीक है। सो एंड सरफेस टेंशन इज सिग्मा, कॉन्टैक्ट एंगल इज थीटा। सो इसमें जो कैपिलरी राइज की वैल्यू होगी दैट इज एच, एच क्या होगी, ठीक है। सो अब हम अपना वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, एकदम धांसू फार्मूला, क्या बोलते हैं उसको, धांसू फार्मूला, धांसू फार्मूला यूज करते हैं। चलो क्या था धांसू फार्मूला, अरे बताओ जी क्या है, बताओ, सिग्मा इंटू कॉस थीटा इंटू पेरीमीटर अपॉन रो जी इंटू एरिया, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं पेरीमीटर क्या होगा। जब हम टॉप से देखें तो हमें कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना माय डियर फ्रेंड्स, हैं, सर्किल तो नहीं दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा जब टॉप से देखेंगे तो। इमेजिनेशन है माय डियर, पूरा इमेजिनेशन है। अगर इमेजिनेशन कर लिया क्वेश्चन का तो तुमसे उसी टाइम पे तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इमेजिनेशन कर लिया मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जब टॉप से देखेंगे तो क्या दिखेगा, स्क्वायर, सर्किल नहीं, एक रेक्टेंगल दिखेगा ऑफ साइड ए एंड बी, सिंपल है। तो ऐसे इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये जहां जहां फ्लूइड टच हो रहा है, ये ऐसे फ्लूइड अगर हम इसमें डाले तो फ्लूइड किस किस लेंथ को टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। सो पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, 2a प्लस 2b। एरिया क्या है, जितने में फ्लूइड दिख रहा है, a इंटू बी। सो अब h की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा कॉस थीटा पेरीमीटर 2a प्लस 2b अपॉन रो जी। आप लोग डिटेल सॉल्यूशन करके देखिए ये आंसर इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये वन लाइन में, बस सिंगल लाइन, वन लाइन में हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है, धांसू फार्मूला। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉब्लम 4 सॉल्व करते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे हम सॉल्व, प्रॉब्लम नंबर 4। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्या है प्रॉब्लम नंबर 4 में, वाटर ही है और इसमें हमने डाल दिया पाइप। कैसा पाइप दिया, एनुलर टाइप का, मतलब हॉलो पाइप, ये सॉलिड है पूरा। ओके माय डियर, और ये हॉलो है, तो राइज कैसे होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है माय डियर। और ये क्वेश्चन आता रहता है, और लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इनर डायमीटर है d1
पाइप का पाइप देखते हैं, यह है पाइप। सो ये डायमीटर दिया है d1 और ये आउटर डायमीटर दिया है d2, ठीक है। सरफेस टेंशन है सिग्मा, कॉन्टैक्ट एंगल है थीटा। सो व्हाट इज कैपिलरी राइज h, और ये है वाटर और ग्लास। सो कैपिलरी राइज क्या होगा h की वैल्यू। सो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एंड विल यूज दैट फॉर्मूला ओनली। वो क्या फॉर्मूला अपने पास, h इक्वल्स टू सिग्मा कॉस थीटा इंटू पेरीमीटर अपॉन रो जी इंटू एरिया, ठीक है माय डियर। हमारे पास बस यही एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से यूज करेंगे हम पूरा। तो अब इसको अगर हम टॉप व्यू बनाएं, टॉप व्यू देखें तो कैसे दिखेगा, एक बाहर वाला सर्किल दिखेगा, एक अंदर वाला सर्किल दिखेगा। ये होगा सॉलिड, पूरा सॉलिड होगा ना माय डियर, और फ्लूइड अंदर, यहां पे ऐसे फ्लूइड दिखेगा। ओके माय डियर। सो अब हम पता करते हैं पेरीमीटर क्या होगा। सो फ्लूइड किस किस लाइन को टच कर रहा है, यहां पे देखो फ्लूइड इस लाइन को टच कर रहा है कि नहीं, करेगा, बिल्कुल कर रहा है। इसको टच करेगा, टच करेगा या कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है ना। सो ये है d2 और ये है d1। सो d1 वाले पेरीमीटर को भी कर रहा है, d2 वाले भी पेरीमीटर को कर रहा है। सो अब नेट पेरीमीटर क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द लेंथ्स, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द लेंथ दैट इज टचिंग द फ्लूइड, क्या होगा, पाई d1 प्लस पाई d2। अब टॉप से एरिया क्या होगा, टॉप से हम देख रहे एरिया, जितने एरिया में फ्लूइड दिख रहा है नॉर्मल एरिया में, वो पूरा एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, इतने में फ्लूइड दिख रहा है ना इस वाले एरिया में, इसमें दिख रहा नहीं, इसमें तो नहीं है, बस इसमें ही फ्लूइड है। तो क्या होगा, पाई बाई 4 d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। सब ऊपर हम रख देंगे, सिंपल है, सिग्मा कॉस थीटा, पेरीमीटर क्या है, पाई कॉमन ले लिए तो d1 प्लस d2 बच गया, रो जी, एरिया क्या है, पाई बाई 4 d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। माय डियर पाई से पाई कट जाएगा, d1 प्लस d2 से इसको अगर फैक्टर करेंगे तो d1 प्लस d2 कट जाएगा। तो अपने पास ऊपर क्या बचा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू d2 माइनस d1। सो एक लाइन में माय डियर क्वेश्चन निकल रहा है, एक लाइन में क्या है, एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं हम। धासु फॉर्मूला को यूज करिए और सिंगल लाइन में आंसर निकालिए। ओके माय डियर। सो नाउ वी हैव सॉल्व्ड few problems. So now let us move to next slide. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, कैपिलरी फॉल का। सो अब हमने लिया एक कंडीशन, क्या लिया, मरकरी लिया, ठीक है। इसमें स्मॉल डायमीटर पाइप का डायमीटर कितना है, डी, ग्लास का पाइप हमने इंसर्ट किया, ठीक है। सो ये फ्लूइड क्या लेयर होना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, बट ये ऐसे नहीं रहेगा, क्यों, हम समझते हैं। थोड़ा जूम फिगर बनाओ इधर। ओके माय डियर, ये रहा लेयर था ना, ये वाला पैरेलल लेयर मैंने किया, ये वाला पैरेलल लेयर। यहाँ पे क्या होगा, मरकरी मॉलिक्यूल होगा, इधर क्या होगा, ग्लास मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे मरकरी मॉलिक्यूल है, इधर ग्लास मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे भी मरकरी मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे भी मरकरी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो बाउंड्री पे है, ये इधर पुल होगा, किस फोर्स से पुल होगा, कोहेसिव से। ये इधर पुल होगा, किससे पुल होगा, एडहेसिव से,
ठीक है, ये ऊपर पुल होगा एडहेसिव से, नीचे पुल होगा कोहेसिव से। ओके माय डियर, तो ये क्या है, मरकरी है और ये क्या ग्लास पाइप है। मरकरी ग्लास के पाइप में मरकरी क्या था, नॉन वेटिंग फ्लूइड जिसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा था, तो ये नीचे पुल कर लिया जाएगा इसको, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। मरकरी क्या था, नॉन वेटिंग फ्लूइड, तो इसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा था एडहेसिव फोर्स से। सो ये जो बाउंड्री पे है इसको नीचे से पुल किया जाए, नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये कैसे बन जाएगा, उस नीचे जब पुल होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और कैसे बन जाएगा, इस टाइप से। ओके माय डियर, फिर से हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये था लेयर पूरा, थोड़ा साफ सुथरा ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ओके माय डियर, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रेशर क्या होगा अंदर P, यहाँ प्रेशर क्या होगा P नॉट। ठीक है, सो अब हम फिर से लगाते हैं वही चीज, इधर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स ऐसे लगेगा, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स ऐसे लगेगा, और ये है थीटा। सो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ गया, F cos थीटा। ठीक है माय डियर, और F की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू पेरीमीटर। ये सर्किल है तो पेरीमीटर क्या होगा, पाई इंटू डी। सो अब हम फोर्स बैलेंस करेंगे। फोर्स बैलेंस करने का सबसे पहला टेक्निक क्या है बताओ, एक्सिस ड्रॉ करना। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम करते हैं फोर्स बैलेंस। तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स किधर लग रहा है, F सरफेस टेंशन की वजह से y डायरेक्शन में नीचे लग रहा, तो माइनस F cos थीटा, तो माइनस सिग्मा पाई डी। P नॉट की वजह से किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो माइनस P नॉट इंटू एरिया। एरिया कितना, नॉर्मल एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। P की वजह से ऊपर लग रहा है, सो प्लस P इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब हम समेशन क्या करेंगे, समेशन एफ वाई, फोर्स बैलेंस करेंगे, समेशन एफ वाई 0 करेंगे। ओके, सो माइनस क्या होगा, माइनस सिग्मा पाई डी माइनस P नॉट इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस P इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। ओके माय डियर, सो यहाँ से P क्या आएगा, P नॉट प्लस, ओके 1 मिनट, कॉस थीटा, ओके माय डियर, P नॉट प्लस 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डी, ये आ गया P नॉट। इक्वेशन 1 आ गया। क्या हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप फोर्स बैलेंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना, फोर्स बैलेंस करके हमें P मिल गया, दैट इज P नॉट प्लस 4 सिग्मा कॉस थीटा। अब यहां से हम देख रहे हैं क्या है, P की वैल्यू P नॉट से ज्यादा है, मतलब P नॉट के बराबर नहीं है, और ये फ्री सरफेस होगा, तो इधर क्या होगा, प्रेशर P नॉट, यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर P नॉट। सो पास्कल्स लॉ कहता है कि परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, प्रेशर सेम होना चाहिए फॉर स्टैटिक फ्लूइड। ये बोलता है पास्कल्स लॉ, हमने लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर P, और ये क्या है, प्रेशर P नॉट नहीं है, P नॉट से ज्यादा है, तो यहाँ पे फ्लूइड क्या चाहेगा कि वहां पे मेंटेन करना प्रेशर P नॉट। कहां पे प्रेशर P नॉट, यहाँ इनसाइड। ओके, तो जब अगर मान लो फ्लूइड, ये वाला फ्लूइड ऊपर जाएगा, ऊपर गया, यहां पे गया मान लो, ठीक है, तो लेट्स सपोज, लेट अस कंसीडर कि फ्लूइड कहां गया, हम ये समझ रहे हैं कि कहां जाएगा फ्लूइड। ठीक है माय डियर, फ्लूइड कहां गया, ऐसे ऊपर गया, यहां पे क्या था P नॉट, यहां पे क्या था P। ओके माय डियर, सो P क्या था, P नॉट से ज्यादा था। देखो पीछे ही हमने लिखा है P नॉट प्लस है ना, तो P क्या होगा, P नॉट से ज्यादा होगा ना, ठीक है। और अब यहां पे प्रेशर निकालोगे तो ये P और ये वेट ऑफ फ्लूइड है,
ठीक है, तो एडिशनल वेट और आ जाएगा, तो यहाँ प्रेशर P से भी, यहाँ प्रेशर मान लो P डैश है तो वो P से भी ज्यादा हो जाएगा, P डैश। और जबकि फ्लूइड क्या चाहेगा, P नॉट रहना। तो जब फ्लूइड को देखा कि मैं जब ऊपर जा रहा हूं तो वहां तो प्रेशर बढ़ रहा है, सो विच इज नॉट एडवांटेजियस फॉर मी। सो क्या करेगा, दूसरा वे अपनाएगा। क्या, दो ही ऑप्शन है, ऊपर जाए या नीचे जाए, तो क्या करेगा, नीचे जाएगा। ओके माय डियर, सो वो नीचे जाएगा। अब देखिएगा क्या होता है नीचे, नीचे जाने पे। तो ये रहा लेयर, फ्री सरफेस P नॉट। तो फ्लूइड ने क्या किया, फ्लूइड ऊपर जाकर के उसको धोखा हो गया फ्लूइड के साथ बहुत बड़ा, बिकॉज जब ऊपर गया तो वेट फ्लूइड की वजह से जहां यहाँ पे प्रेशर जो आएगा वो तो P से भी ज्यादा हो गया, और P ऑलरेडी P नॉट से ज्यादा है। तो अब क्या किया इसने कि ये क्या किया, ये ऐसे गया, ठीक है, कहाँ गया, नीचे गया मान लो। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, अब ये एयर हो जाएगा, एयर हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, P है। ओके माय डियर, तो इस पोजीशन पे तो प्रेशर P नॉट हो गया, ठीक है माय डियर। और ये मान लो हाइट कितना है, h है। तो अब हाइट h, तो अब इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ करें, ये पूरा फ्लूइड ही है, पूरा फ्लूइड है, पूरा फ्लूइड है, पूरा फ्लूइड, इधर पूरा फ्लूइड है, ठीक है माय डियर, इधर पूरा फ्लूइड है, इधर पूरा फ्लूइड है, इधर भी पूरा फ्लूइड है। तो अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए तो यहाँ पे प्रेशर P है, तो पास्कल्स लॉ कहता है कि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P, राइट। सो अब हम दूसरा स्टेप लाते हैं। क्या दूसरा स्टेप, पास्कल्स का मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, इन कॉलम। सो मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या है, 0.1 है, 0.2 है, ये वाला। सो 0.2 पे प्रेशर हमें निकालना है, दैट इज P। सो P इक्वल्स टू P नॉट। सो P नॉट से P की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जा रहा है, तो प्लस रो जी H, कितना हाइट मूव कर रहे हैं, H, तो रो जी H। सो यहाँ मेरे पास इक्वेशन 2, ठीक है। सो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 रख दो, सो क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी H इक्वल्स टू P नॉट प्लस 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन D। P नॉट से P नॉट कट गया तो H इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी D, रो जी D। ओके माय डियर, सो ये क्या है, कैपिलरी फॉल, किस केस में, मरकरी प्लस ग्लास। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इन दिस केस कोहेसिव फोर्स इज मोर देन द एडहेसिव फोर्स। दीज 3 स्टेटमेंट फॉर दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला याद रखना, उस फॉर्मूले का मतलब क्या वो याद रखना बहुत जरूरी है, मोर देन द फॉर्मूला इटसेल्फ। उसका मतलब क्या, ये ऑलरेडी ऑल द टाइम यू राइट डाउन, जब भी कोई फॉर्मूला लिखो तो वो फॉर्मूला क्या है, उसमें एजम्पशंस क्या है, वो फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो भी लिखना बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, इवन आई विल से मोर देन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला, कैपिलरी फॉल का है, किसके लिए, मरकरी और ग्लास के लिए। क्यों मरकरी और ग्लास में कैपिलरी फॉल होता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, एंड इफ यू सी दिस फॉर्मूला वेरी क्लोजली, इट इज सिमिलर टू कैपिलरी राइज। तो जो मैंने फॉर्मूला आपको बताए हैं कैपिलरी राइज के लिए, सारे फॉर्मूला कैपिलरी फॉल में वैलिड है। सो हमारा धांसू फॉर्मूला जो ये बताया है आपको, ये भी वैलिड होगा कैपिलरी फॉल के केस में। सो एनी टाइम यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन फॉर कैपिलरी फॉल एज वेल। सो नाउ माय फ्रेंड्स, this is all from our third lecture. The other topics will be covered in next lectures. I thank you all for watching this video, and if you like this video, share with other students as well. For more videos and regular updates, subscribe to this channel. Thank you all.